Raunak Agarwal. I'm from Calcutta, and I got AIR 13 in the Civil Service Examination 2019 attempt. And I have been always a topper throughout, but I got flunked twice in prelims itself. So this was my third attempt, third prelims, but first mains and first interview. तो ये एग्जाम है ही ऐसा दैट इट कैन टेक anyone from anywhere, ups and downs, कुछ भी हो सकता है. And the main thing to be ensured is perseverance, because last year when I had not cleared prelims, I had made my mind that I will not be continuing this with the civil services exam again. But then had I left it, I would not have achieved what I am today. So मेरा एक बहुत important ये message है कि please don't lose heart. इसमें चाहे एक attempt लगे चाहे 6 attempt लगे, after you clear it, attempts don't matter at all. And so to talk about my background, I have been born and brought up in Calcutta. I did my schooling of class 10 from Nupani Vidyalaya, class 12 from St. Lawrence High School, and I did my graduation in BCom from St. Xavier's College. I have been a gold medalist in St. Xavier's College. After that, I completed my chartered accountancy with All India rank 5th. I completed my CFA course, and after that, I came to UPSC preparation. To add to it, why I entered into UPSC being from a commerce background. My grandfather had told me this in class 12 when I was in 2010 or 11. At that time, he told me that you can earn lots of money being from a business background, but the satisfaction of the service and the prestige of the services is something which we cannot achieve. It is unparalleled. And we had made my mind that I'll be going for UPSC, but since this is a very tough course, I wanted to have a backup so that after 26 or 27 years of my age, I don't have to again flutter कि अब क्या करना है. So I completed my CA, did not join any job, and came to UPSC. Prelims में first attempt जो था मेरा, that was something wherein I was underprepared. I can't blame anyone for that. And if you ask me in तीनों में से मेरा best attempt कौन सा था prelims के लिए, it was my second attempt was my best attempt. I was the best prepared. एकदम प्रॉपर एकदम जो होता है ना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने फेल होने के बाद जो एकदम वो जोश आया हुआ रहता है, तो वो था सेकंड अटेम्प्ट में. बट उस बार भी नहीं हो पाया तो थोड़ा सा डिसहार्टेंड हो गया था. एंड मोर ओवर व्हेन यू गेट फ्लंक्ड इन प्रीलिम्स इटसेल्फ, जब आप प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं कर पाते हो 2 बार, तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत डिप्रेसिव हो जाता है वो चीज. बट एटलीस्ट आई थैंक गॉड एंड माय फैमिली कि हम आई स्टक टू इट, एंड या हियर आई एम. And talking about my strategy for prelims, what changed during my third attempt? There was nothing which changed specifically, because मेरा जो attempt second था और third था almost same था prelims के लिए. But what happened additionally was because I had read so many things twice, that helped me in my memory and my knowledge, and more importantly the practice, because mock tests are very important, and because I had done those topics so many times, I could attempt many mocks. And mock tests are important because चाहे आप कितना ही deeply और कितने ही thoroughly prepared हो, there will be some questions in UPSC wherein you will have to guess them. अब वो intelligent guess भी हो सकता है और blind guess भी हो सकता है, जो भी हो. But how you guess that, how are you attempting your questions so as to maximize your score and minimize your negative marks, that is important. और इसमें I would like to share a strategy of a senior of mine. Her name is Achal. She had shared this with me. She told me that अपनी subconscious mind में हमेशा questions को distribute कर लेते हैं कि हम कौन सा हमको attempt पहले करना है और जो तुक्का मारना है वो बाद में attempt करना है. But she told me that you can do it in a more mathematical manner. So she told me कि हर पेज में, मतलब we have 20 pages approximately of UPSC prelims. हर पेज के ऊपर में she told write 4 things. A for हम जो हमको आता है and I'm attempting it. फिर half T is for half तुक्का, which means that अगर 4 ऑप्शन है A B C, then I am sure कि B और D नहीं हो सकता, A और C होना चाहिए, तो वो क्या half तुक्का. फिर एक होता है 1/3 T, which is 1/3 तुक्का, मतलब उसमें हम 3 ऑप्शंस में कंफ्यूज हैं, एक पता है कि पक्का रॉन्ग है, और एक होता है फुल तुक्का FT, जो अपने पूरा वाइल्ड गैस होता है, खाली 6 सेंस के थ्रू अटेम्प्ट करते हैं. तो सबकॉन्शियसली सबको यही ट्राई करता है कि हम ऐसे ही अटेम्प्ट करें, बट अगर अपने इस तरीके से मार्क कर लेते हैं हर क्वेश्चन को, देन the chances of getting negatives is less and you make an intelligent guess. तो ये बहुत हमको हेल्प किया था, and this was the reason I could pass through the prelims. And ये जरूरी नहीं सबके लिए strategy applicable हो, क्योंकि I have some friends of mine who could easily clear prelims with 120 or 130.
तो एक्चुअली क्या ये पूरा जो यूपीएससी एग्जाम है इसमें जो 3 स्टेजेस है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, all 3 test different aspects of an individual. Prelims test the objective knowledge, MCQs. Mains test the analytical and subjective knowledge. I was lacking on the objective front. Many of my friends lack on the subjective front. तो सबका अपना अपना loopholes होता है, सबका अपना अपना plus and minus points होता है. So we should capitalize on that and work hard for this. How I studied for prelims, mains and the interview, I'll tell you broadly first of all, and कुछ जो specifically मैंने follow किया था वो बता दूंगा मैं. Talking about prelims first of all, current affairs is something which is very important for UPSC. It has been important for last 10 years, but the trend of current affairs being asked is changing. आजकल क्या हो रहा है कि स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर्स मिक्स होके क्लब होके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. हो सकता है 2 साल के बाद वो भी चेंज हो जाए, सबके लिए सेम स्ट्रैटेजी एप्लीकेबल नहीं होता. तो व्हाट आई डिड फॉर करंट अफेयर्स वाज, एक ओनली आईएएस बोल के पोर्टल है, यूट्यूब चैनल है, उसमें प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज डिस्कशन आता है. एवरी डे आई यूज्ड टू वॉच दैट. सेकेंडली आई यूज्ड टू रीड द न्यूज़पेपर द इंडियन एक्सप्रेस, एंड वो स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि उसमें एक पेज आता है एक्सप्लेन बोल के, which is very important both for prelims and for mains. Along with that, I studied 2 monthly magazines for current affairs, एक विजन आईएएस का और एक इनसाइट्स ऑन इंडिया का. और आफ्टर मतलब जब प्रीलिम्स की ठीक पहले 2 months पहले एक राव आईएएस का एक स्टडी फोकस मैगजीन आता है, एवरी सब्जेक्ट स्पेसिफिक. तो आई डिड दैट टू. अब क्या होता है, बहुत लोग खाली एक ही पर्टिकुलर सोर्स फॉलो करते हैं करंट अफेयर्स के लिए, बट आई ट्राई टू फॉलो मल्टीपल सोर्सेज. द रीजन बीइंग करंट अफेयर्स इज समथिंग कोई भी एग्जॉस्टिवली कवर नहीं कर सकता. तो आप जितना ज्यादा सोर्सेज से पढ़ेंगे आपका उतना ज्यादा रिस्क मिनिमाइज होगा. प्लस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है करंट अफेयर्स का, वो आप 5 अलग अलग टॉपिक से पढ़ पाए, अलग अलग जगह से पढ़ पाएंगे, विच विल गेट रजिस्टर्ड इन योर माइंड एंड विल हेल्प यू इन आर्टिकुलेशन इन दी मेंस. अलॉन्ग विद दैट एक स्लीपी क्लासेस बोल के भी पोर्टल है यूट्यूब पे, चैनल ही है वो. तो उससे आई हैड फॉलोड एक प्रीमिक्स बोल के उसमें आता है और एक प्री क्योर आता है. तो आई यूज्ड टू वॉच 3 थिंग्स डेली. एक न्यूज़पेपर रीडिंग करता था, एक प्रीलिम्स बूस्टर ऑफ ओनली आईएएस और एक प्रीमिक्स एंड प्री क्योर ऑफ स्लीपी क्लासेस. Along with that, the monthly magazines. Now talking about the static portion, normally जो common books है वो तो सबको ही पढ़ते हैं. I will not focus on any in the common books. What I did differently, या थोड़ा सा हम नया book follow किया था, I'll just mention that. For art and culture, for ancient history and for medieval history, I had followed Tamil Nadu का board का book. That is concise and a bit exhaustive, so I just followed that. I did not do the NCRTs. Secondly, for geography, I had followed one extra book called Periyar. It is an awesome book for Indian physiography, and that is not only physiography, Indian geography as a whole. वो भी बहुत ज़्यादा helpful रहा था मेरे लिए. And along with that, उसके अलावा बाकी सारे जो नॉर्मल बुक्स, टेक्स्ट बुक्स रहते हैं, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, नितिन सिंघानिया एंड शंकर आईएएस के लिए एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, आई फॉलो द वेरी नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स ओनली. The difference, the differentiating factor was ultimately the Rao का study focus का magazine, then वो YouTube का channels, that helped me a lot. Now coming to mains, prelims और mains का जो prelims के topics है, almost सारे topics mains में है. तो ultimately, like what I did was I did not read anything for mains before, because I had not cleared prelims twice. तो हम mains के लिए preparation कुछ भी नहीं किया था. I had just prepared for my optionals. My optionals was commerce and accountancy. I just completed my syllabus. हम ना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया था, ना कोई भी ऐसे लिखा था, एंड ना ही सोशल इश्यूज, ना गवर्नेंस, ना एथिक्स. आई डिड नॉट डू एनीथिंग बिफोर प्रीलिम्स. तो एक जो नोशन है कि मतलब यू शुड राइट आंसर्स every day, two answers for mains, otherwise you might not clear that, and people start writing that from November, from October, अगर अगले जून में देना है. तो मेरे लिए वो मतलब हम वो किया भी नहीं था, and I don't think that is necessary. So what I did after prelims was, because most of the topics of prelims are there in GS 1, 2, 3 जो common है, I did not do them for the first few months. I tried to complete the rest of the topics, जैसे social issues हो गए, governance हो गए, ethics हो गए. After completing them, I just tried to revise जो prelims का books का material है, and then sat for the exam. This was regarding the common topics. Coming to some specific areas of answer writing, I would like to mention something. Mains में जितना content important है, उतना ही how you present your answer भी उतना important है. Because
up to a when you clear prelims, most of the students are intelligent enough and well read enough that they have the common content which is available to all. So you have to make your answer stand differently. अगर वो अपील नहीं करेगा एग्जामिनर को तो वो एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दे पाएगा आपको. तो उसके लिए दो मेथड है. एक, क्या तो आप कुछ नया फैक्ट्स फिगर्स या नया रिपोर्ट्स डालिए, या अपना आंसर को एक बेटर वे से लिखिए. तो आई जस्ट गिव एन एग्जांपल. अगर सपोज कोई भी एक क्वेश्चन आता है अपना, सपोज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में क्वेश्चन आता है कि क्रिटिकली इवैल्यूएट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी व्हिच हैज बीन ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट रिसेंटली. तो ये इसका जो मेन कंटेंट है वो सबको पता है, पॉलिसी का फीचर्स क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव सब पढ़ के आएंगे. लेकिन जैसे ही आपको ये क्वेश्चन देखते हैं, आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि हमको क्या क्या चीज यूज करना है. यहाँ पर एजुकेशन है तो SDG 4 हमको यूज करना है, नीति आयोग एक्शन एजेंडा का चीज यूज करना है, एसर का रिपोर्ट आप यूज कर सकते हैं, नेशनल एजुकेशन सर्वे यूज कर सकते हैं, देन ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स यूज कर सकते हैं जहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है. देन यू कैन यूज डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला फैक्टर. यू कैन यूज अ कोटेशन टू सप्लीमेंट योर आंसर की एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है. तो इंडिया 75 का रिपोर्ट यूज कर सकते हैं. तो these are some things which will make your answer stand differently. Along with that, कुछ facts and figures भी अगर आप याद कर सकते हैं तो वो भी आपका आंसर को थोड़ा डिफरेंट बनाएगा. Now coming to presentation. First of all, I tried to write each and every answer in subheadings. तो अगर पहला बात तो अगर क्वेश्चन का 2 या 3 पार्ट है तो आपका आंसर का भी पक्का वो 2 या 3 पार्ट अलग से डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए. सेकेंडली, अगर क्वेश्चन का खाली एक ही पार्ट है, क्रिटिकली इवैल्यूएट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, खाली इतना ही है, तो उस स्टिल आपको अपना आंसर को सब पार्ट्स में लिखना चाहिए. पहले आप इंट्रोडक्शन लिख देंगे, नॉर्मल वॉट एवर द इंट्रोडक्शन इज, देन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है क्या, देन फीचर्स, देन इवैल्यूएशन, उसमें पॉजिटिव्स फिर नेगेटिव्स, देन अ कंक्लूजन. तो ये हो गया आपका सब पार्ट्स. दूसरा, I had the advantage that I could write both in black and blue pen. तो हम मतलब सब हेडिंग्स ब्लैक पेन से लिखता था और मेन आंसर ब्लू पेन से लिखता था. But most people cannot do that in that limited time. No problem in that. What you do is सब हेडिंग्स अगर आप लिख रहे हैं तो उसी पेन से अंडरलाइन कर दीजिए so that gets distinguishable. Secondly, try and underline all the important points of your answer. The examiner does not have that much of time to read each and every point and each and every paragraph. Try and underline the important factors. अब thirdly क्या हो रहा है, अब सपोज हम लिख रहे हैं पॉजिटिव्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं 1 2 3 4 5 लिख देते हैं और तो आपका आंसर पूरा जो आंसर शीट है वो मोनोटोनस लगता है. आई इंट्रोड्यूस वर्ड डायग्राम्स इन दैट. अब वर्ड डायग्राम्स कैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव एडवांटेजेस या सपोज लूप होल्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो यहाँ पे हम लिख के एक बॉक्स बना दिया, देन अ डैश एंड देन अ लाइन, then 5 points लिखना, तो 1 2 3 4 5 and then I wrote 5 points. I have taken the same space, I am writing the same points but in a better manner which appeals. या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, एडवांटेजेस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक क्लाउड बना लीजिए और फिर ऐसे डैश डैश करके बना लीजिए, या फिर एडवांटेजेस बना के फिर ऐसे लाइन देके फिर ऊपर नीचे करके लिख दीजिए. एग्जैक्टली सेम स्पेस यूज हो रहा है, यू आर राइटिंग द सेम स्टफ बट इन अ बेटर पैटर्न. और मोर इम्पोर्टेंटली जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन होता है, those should be standing apart. उसमें आप नॉर्मल मंडेन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन नहीं लिख के, यू शुड राइट समथिंग ऑफ योर ओन. कुछ व्यूज उसमें लिख सकते हैं, कुछ गवर्नमेंट का डेटा यूज कर सकते हैं, कुछ अच्छा कोटेशन, जैसे एक कोटेशन है व्हिच आई यूज्ड टू फॉलो. GS2 में इंटरनेशनल रिलेशंस से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आता है. तो एक कोटेशन है कि इन फॉरेन रिलेशंस देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स. तो आप जैसे अभी इस बार शायद यूएस और इंडिया का रिलेशनशिप पे आई थिंक एक क्वेश्चन आया था, तो आई यूज दिस कोटेशन. कुछ नहीं है, नॉर्मल से 2 लाइन में खत्म हो गया बट थोड़ा डिफरेंट हो गया आंसर. तो यू कैन यूज अ कोटेशन, यू कैन यूज सम फैक्ट्स एंड फिगर्स, और यू कैन यूज द रिपोर्ट्स व्हिच आई मेंशनड अर्लियर. नाउ कमिंग टू एसे राइटिंग, आई विल ट्राई टू फोकस ऑन वन थिंग. अपना जो मेंस है उसमें एसे राइटिंग एक पेपर है, देन जीएस का 1 2 3 4 4 पेपर्स हैं और 2 ऑप्शनल पेपर्स हैं. We'll not talk about the qualifying papers of English and vernacular language. For qualifying है, we'll leave that. Now, optionals के लिए सबको प्रिपेयर करते हैं, सबको मेहनत करते हैं. तो आप अलग से उसमें क्या कर रहे हैं, सबको मेहनत कर रहे हैं. GS 1 2 3 में क्या होता है, सबका कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होता है, सबका कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होता है. कोई इकोनॉमिक बैकग्राउंड से होता है तो उसका GS 3 स्ट्रॉन्ग है, कोई आर्ट्स से होता है उसका GS 1 स्ट्रॉन्ग है, कोई पॉलिटिकल साइंस से होता है उसका GS 2 स्ट्रॉन्ग है. तो बट GS 4 जो एथिक्स है वो सबके लिए न्यू है.
और ऐसे राइटिंग ऐसा है जो सबको इसमें इंप्रूव कर सकते हैं. तो आई ट्राइड टू वर्क ऑन GS4 एथिक्स एंड ऑन एसे, सो दैट थोड़ा एक एडिशनल मार्क्स का यहाँ पे एडवांटेज आ जाए. For essay writing, what I did was, there are some various common topics, जैसे 10-15 common topics है जिन पे normally essays पूछे जाते हैं, जैसे women empowerment, education, child development, economy, environment, then we have science and tech, we have media, health. तो इन कुछ जो common topics है उनके ऊपर I had made 2 documents, 2 Word documents बना सकते हैं आप, हाथ से लिख सकते हैं, whatever is comfortable to you. In one document, I had written all the statistics for that. अगर हम suppose women empowerment के ऊपर हमको कुछ ऐसे लिखना है, या फिर हमको GS1 में social issues में उसके बारे में कुछ लिखना है, I can use that statistics totally. तो उसमें मतलब रेप के बारे में आप लिख सकते हैं, फिर निर्भया फंड का कितना परसेंटेज यूज हुआ है आप वो लिख सकते हैं, उसका स्टैटिस्टिक्स आ सकता है, वुमेन का कितना ऑक्यूपेशनल ओनरशिप है वो डेटा आ सकता है, एग्रीकल्चर में वुमेन का कितना रोल है वो आ सकता है, फिर वुमेन एम्पावरमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये सारे जितने भी डेटा हैं, इंडेक्सेस हैं, उसका हमें स्टैटिस्टिक्स से पूरा डॉक्यूमेंट बना लिया था टॉपिक वाइज. दिस विल हेल्प बोथ इन एसे एंड इन योर जीएस पेपर्स. सेम हम कोटेशन के साथ भी किया था, बिकॉज इफ यू यूज कोटेशंस इट एड्स अ न्यू फ्लेवर टू योर आंसर, टू बोथ जीएस एंड योर एसे राइटिंग. तो आई डिड द सेम थिंग. जैसे अल गोरे का एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत सारे कोटेशन बहुत अच्छे हैं, बन की मून का अच्छा कोटेशन है, एंटोनियो गुटेरेस जो यूएन का जनरल है उनका बहुत सारा कोटेशन है, इकोनॉमी में आईएमएफ का क्रिस्टिना लगार्डी का बहुत सारे कोटेशन है. आई यूज दैम. हम उसका पूरा एक डेटाबेस बना लिया था माई सेल्फ और उसी को फिर यूज किया था. एंड एक और चीज, ऐसा नहीं है कि हम ये सब पहले किया था, आई डिड एवरीथिंग आफ्टर प्रीलिम्स. तो ये भी नहीं है कि हम बहुत पहले से प्रिपेयर करा था, लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, ऐसा भी नहीं है. एंड सेकेंडली ये भी नहीं कि उसके लिए अलग से टाइम दिया था. आई हैड डिसाइडेड कि हम डेटाबेस बनाएगा. हम जैसे जैसे कुछ डेटा आ रहा था आई यूज्ड टू राइट इट डाउन एंड सेव इट. आई डिड नॉट डिवोट 5 or 10 days. आई डिड नॉट सर्च फॉर देम. जहां जहां आता गया आई यूज्ड टू राइट देम डाउन. तो this is for essay writing. Also in essay writing, you can use your strong points. Like some people can make good stories. You can start with a story. You can include a story in your essay. I have a hobby of writing poems, and I can develop poems instantly on any topic. So I used my skill in my essay writing. I tried to start every essay with a poem. चाहे वो, और उस poem में I tried to include the entire gist of the essay. अगर एक essay है whether economy and environment can go together, तो उस 8 या 6 लाइन की पोएम में environment भी रहेगा, economy भी रहेगा, मेरा व्यूज भी रहेगा और current scenario भी रहेगा. तो उसको रीड करते ही आपका ऑलरेडी essay को एक अपलिफ्टमेंट मिल जाता है. तो आई ट्राई टू डू दैट. हमको मॉक्स में अच्छा मार्क्स मिला था बिकॉज ऑफ दिस essay में. एक्चुअल में आई डू नॉट नो क्या होगा, बट आई फॉलो दिस. Secondly, in my essay writing, I had in every essay I tried to break it into 3 or 4 subheadings. Like it depends, बहुत लोग subheadings में comfortable नहीं होते, बहुत लोग होते हैं. I preferred subheadings, but not less than 3, not more than 4. और subheadings should be catchy. उसमें आप कुछ समागम वर्ड डाल दीजिए, आत्मनिर्भर वर्ड डाल दीजिए, मतलब be creative, use some current keywords with the topic. उससे बहुत अच्छा एक coherence मिल जाता है आपका essay को. And this was about essay writing. And do write essays. बहुत लोग क्या करते हैं, एग्जाम के 15 दिन पहले ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं. I followed a technique कि जैसे हम when I came from my prelims, I saw my marks कि मेरा कट ऑफ क्लियर हो रहा है. I made a point कि हम हर 10 days में या एटलीस्ट हर 2 वीक में एक ऐसे लिखिएगा. And after I have written 4 or 5 essays, I used to write 2 essays in one go, because एग्जाम में आपको 3 घंटे में 2 ऐसे लिखना है. तो आप एक ऐसे बार बार अलग अलग टाइम पे लिखेंगे तो वो आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है. तो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ट्राई एंड राइट 2 essays in one go. तो ऐसे आई रिटन टोटल 9 essays बिफोर माय मेंस. ये हो गया ऐसे राइटिंग का पूरा कंप्लीट. कमिंग टू एथिक्स, GS4. बहुत लोग क्या करते हैं, 1 या 2 ही बुक्स फॉलो करते हैं ऐसे एथिक्स के लिए. बट आई फॉलोड a lot of textbooks, a lot of materials, but सबसे कुछ parts. Ethics का 2 part है, एक group A, group B. Group B is case studies based. तो I had taken tuition from Vajiram and Ravi in 2016 attempt.
तो उनका एक मणिकांत सर का नोट्स है, क्लास नोट्स. इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर दिस केस स्टडीज. तो एक उनका फॉलो किया था. अलॉन्ग विद दैट एक ओरिएंट आईएएस का बुक आता है. उसका भी ओरिएंट आईएएस का एथिक्स का बुक 2 पार्ट में आता है, पार्ट ए पार्ट बी, जैसे एक पेपर एग्जाम पेपर रहता है. तो पार्ट बी बहुत बहुत हेल्पफुल रहा हमको ना केस स्टडीज के लिए. कमिंग टू द पार्ट ए पोर्शन, आई फॉलोड एक जीके टुडे का बुक आता है, आई फॉलोड दैट. लेक्सिकॉन का आई जस्ट हैड, बिकॉज हम जीके टुडे पढ़ चुका था, फिर हम लेक्सिकॉन आई वेंट थ्रू द एंटायर बुक और हम देखा कि उसमें गिन के 15 पेजेस एक्स्ट्रा है जो उस बुक में नहीं दिया हुआ है. तो हम बस वो 15 पेजेस पढ़ा था, नॉट मोर देन दैट. तो अगर कोई बोलता है लेक्सिकॉन पढ़ना बहुत जरूरी है, इसके बिना नहीं हो पाता, ऐसा नहीं है. इट इज अ गुड बुक, बट जीके टुडे में क्या इसका थोड़ा जिस्ट दिया हुआ था, तो आई फॉलोड दैट. डिड नॉट हैव मच टाइम टू गो थ्रू दैट एंटायर बुक. उसके बाद ये हो गया. और उसके बाद along with that I had read the answers of previous year's toppers, because ethics is all about how you're writing. So in every ethics का answer I try to incorporate at least 8 to 9 different फैक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल अगर अपनी करप्शन, अगर अपने CSR के बारे में बात करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अंदर एक कोटेशन होना चाहिए CSR से रिलेटेड कुछ भी, चाहे विवेकानंद का हो, चाहे बुद्धा का हो, चाहे कोई रिनाउंड किसी का भी हो. दूसरा, उसके अंदर जैसे ट्रिपल बॉटम लाइन कंसेप्ट है, वो हम इसमें हर एक टॉपिक के साथ कुछ कंसेप्ट रहता है, तो आई यूज दैट. तीसरा, कुछ एक वर्ल्ड फेमस एग्जांपल हो सकता है. CSR के लिए इंडिया में टाटास बहुत फेमस है, बिल एंड मलिंडा गेट्स फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज दैट. एक रियल लाइफ एग्जांपल जो करंट सिनेरियो में चल रहा है, जैसे अभी CSR में ही अभी जैसे वी कैन कंपेयर टू डिफरेंट बिग कॉर्पोरेट्स की ऐसे व्हाई टाटास आर टाटास एंड व्हाई अंबानीज आर अंबानीज. आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, ऐसा जरूरी नहीं आपको यही फॉलो करना है. फिर जैसे अगर अपनी बात करते हैं कंपैशन का, तो कंपैशन के लिए कुछ फेमस पर्सनालिटीज है, जैसे वी हैव मदर टेरेसा इज फेमस फॉर कंपैशन. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रूथ, महात्मा गांधी फेमस फॉर ट्रूथ. तो इनका कुछ जो टॉपिक है, उनका कुछ जो फेमस पर्सनालिटीज है उनको इंक्लूड करना है, प्लस अ रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ माइंड. जो भी मेरा कुछ, अगर हम उसमें, इवन इफ इट इज नॉट आस्क्ड इन द क्वेश्चन, आई यूज्ड टू राइट 1 or 2 लाइन्स में. तो आपका उस आंसर में जो कॉमन डायमेंशंस है, उसके अलावा आप और 5-6 डायमेंशन ऐड कर दिए, तो अपने आप वो थोड़ा सा उस आंसर का लेवल अपलिफ्ट हो गया. एंड in the case studies I had divided my answer into different parts. जैसे पहले एक इंट्रोडक्शन रहेगा, the gist of the case, then stakeholders involved, then the case का डिस्क्रिप्शन. उसके बाद जो क्वेश्चन जैसे पूछ रहा है, अगर सपोज वो ऑप्शन दिया हुआ है, तो हर ऑप्शन का, जैसे सपोज ऑप्शन ए, जो ऑप्शन ए है लिख दिया, एंड देन हम एक मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मेरिट्स डीमेरिट्स, 1 2 3 1 2 3. तो वो सुंदर भी लग गया, उतना ही प्लेस में कवर हो गया, और आप शॉर्ट में लिख सकते, बिकॉज राइटिंग इन पॉइंट्स यू कैन राइट इन शॉर्ट एंड सेव टाइम. तो ये हो गया, एंड देन कंक्लूड द आंसर. ऑल्सो लाइक अगर आप सपोज इफ यू कैन इंक्लूड डायग्राम्स इन इट, जैसे एक टॉपिक है एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है और ऑल्टीट्यूड है, ऐसे कंसेप्ट है, डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड. तो एक इसमें है, यहाँ पे आप एटीट्यूड लिख दीजिए, यहाँ पे ऑल्टीट्यूड लिख दीजिए, ग्राफ बना दीजिए और यहाँ पे ऑल्टीट्यूड कर दीजिए. तो दिस अगेन गिव्स द आंसर डिफरेंट डायमेंशन. आई जस्ट फॉलो दी सिंपल टेक्निक्स. ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके लिए बहुत प्रिपेयर करना है पहले से ही, आपको सारा मिल जाएगा. टॉपर्स का आंसर पढ़ेंगे, तो पास्ट ईयर कॉपीज देखेंगे, तो उससे आपको पूरा चीज मिल जाएगा. तो द थिंग इज कि हार्ड वर्क तो बहुत जरूरी है, ये एग्जाम नहीं पॉसिबल है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी कर देंगे तो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा आपको. ये आपका आंसर बहुत अच्छा एलिवेशन को क्रॉस कर जाएगा. आई एम फ्रॉम कैलकाटा, और वेस्ट बंगाल से क्या वैसा कल्चर नहीं रहा है. लास्ट 15-20 ईयर से यहाँ से लोग यूपीएससी के लिए नहीं जाते हैं. उसके पहले बहुत नहीं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, बट पास्ट अटेम्प्ट से बहुत कम लोग वेस्ट बंगाल से यूपीएससी के लिए जाते हैं. दैट इज द रीजन कि यहाँ पे ना वो ऑरा है और ना यहाँ पे ट्यूशन सेंटर्स है. तो ऐसी और भी बहुत सारी प्लेसेस है इंडिया में, मतलब लोगों को ये मिथ बैठा हुआ है कि आई हैव टू गो फॉर ट्यूशन, नहीं तो नहीं हो पाएगा. उनको बैठा हुआ है कि दिल्ली जाना पड़ेगा, या फिर पटना जाना पड़ेगा, या फिर साउथ में चेन्नई जाना पड़ेगा. उनको मन में मिथ है. I would, although हम भी ट्यूशन लिया था, like मेरा, I'll just tell you a story of mine. We are from business background, तो मेरे पूरे फैमिली में कोई भी ब्यूरोक्रेसी से नहीं है. ब्यूरोक्रेसी में कोई सर्विसेज में कुछ भी नहीं है. So I had no idea about it, no idea at all. That is the reason I had to go for tuitions. And उस टाइम पे क्या है,
इतना ज़्यादा सोशल मीडिया, इतना ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स ये सब एक्टिव नहीं थे. तो it was in 2016. So I had to go to Delhi for tuitions. I had joined in Vajiram and Ravi, but I would just like to make a point that the tuition centers can only build a structure. Build the base. The structure has to be made by you yourself. If you are not going for self-study, if you're not evaluating your own sources of studies, if you're not evaluating your own pros and cons, ये एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता. बिकॉज अगर सपोज हमको आपको एक आंसर लिखवाना है, हम वही आई जस्ट कंटिन्यू विथ माय ओन एग्जांपल, क्रिटिकली इवैल्यूएट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. कोई भी आपको ट्यूशन सेंटर वाला नहीं बोलेगा कि आप इसको इस तरीका से बांट के लिखिए. वो खाली क्या बोलेंगे, एक पॉजिटिव्स का एक पैराग्राफ लिखा देंगे, नेगेटिव्स का पैराग्राफ लिखा देंगे, सारा कंटेंट उसके अंदर रहेगा, बट उसको अच्छे से पोर्ट्रे करना ये आपको करना पड़ेगा. ये कोई भी अलग से नहीं बताने वाला. So I had joined the tuition. It was very helpful to me. I'm not saying it was not helpful because कहीं ना कहीं सब कुछ, एक बुक अगर आप खरीदते हैं उसका एक पेज भी अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो वो बुक सफल हो जाता है. तो I'm not saying कि वो मेरा helpful नहीं हुआ. मतलब वाजिराम एंड रवि का बहुत सारा नोट्स फॉलो किया. I had followed governance from my class notes. I had followed ethics का from my class notes. Social issues from my class notes. I'm not saying it was not helpful, but I had to leave it because हम self study नहीं कर पा रहा था. And so I had to come back to Calcutta. तो आफ्टर कमिंग बैक 2017 में जब मेरा अटेम्प्ट नहीं क्लियर हुआ था, तो उसके बाद हम 2 साल हम सेल्फ स्टडी ही किया है. आई हैड रेफर्ड माय नोट्स, बट देन आई हैड टू फाइंड माय ओन सोर्सेज आल्सो. सबका अपना अपना, एज आई टोल्ड यू, स्मार्ट वर्क में आपको अपने आप को इवैल्यूएट करना है, तो आई डिड दैट. इसके बाद एक और चीज है कि लाइक 2 बार अगर आप नहीं क्लियर करते हैं तो एक डीमोटिवेशन फैक्टर आएगा ही आएगा. इट्स नॉट दैट कि नहीं आएगा, नहीं, मतलब हम कंसिस्टेंटली हाई था. एक और चीज है, मेनी पीपल, मतलब एक्चुअली अ फ्रेंड ऑफ माइन टोल्ड मी कि यार तुम तो सीए है, तेरा नहीं भी होता तो क्या फर्क पड़ता. आई जस्ट टेल अ रियलिटी. मेरा सीए में रैंक आया था, तो उस टाइम पे जो रैंक आया था नवंबर 15 अटेम्प्ट में, उसके लिए हमको जॉब सिर्फ मार्च 2016 तक मिल सकता था. आज अगर हम जॉब मार्केट में एंट्री करता है तो आई विल बी वर्स ऑफ दैन अ 10 टाइम फेलियर इन सीए. तो मेरा वो रैंक मेरा उस अटेम्प्ट के साथ खत्म हो गया. हम खाली उसको अपना सीवी में और शो ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं, नहीं तो हमको वो कमाने के लिए यूज नहीं आएगा. तो इवन आफ्टर फेलिंग, मतलब मेरे पास बैकअप होने के बावजूद भी when I could not clear it, I was in equally that great depression as a normal person would be. इसमें मेरा फैमिली सपोर्ट था. मेरे मदर फादर बहुत हेल्प किए थे, बट जरूरी नहीं सबके फैमिली सपोर्ट हो. बस एक चीज खाली माइंड में रख के चलेगा, हम नहीं किया था गलती. आई वॉज नाइव. आई थॉट कि हम एक बार में क्लियर कर लेंगे. ये बात सोच के मत चलिएगा. एक बार में हो जाता तो बहुत अच्छा बात है. अपने माइंड में टाइम फ्रेम रख के रखिए सो दैट यू डोंट गेट डिसहार्टेंड आफ्टर अ फ्यू अटेम्प्ट्स. एक लगे, हम पहले भी बोला, वापस रिपीट कर रहे हैं, एक अटेम्प्ट लगे चाहे 6 अटेम्प्ट लगे, क्लियर होने के बाद मैटर ही नहीं करता कितना अटेम्प्ट लग रहा है. बट साथ ही साथ सेटल होना भी जरूरी है, फैमिली भी जरूरी है, पैसा भी जरूरी है. तो इफ यू नॉट, व्हाट आई डिड वाज कि आफ्टर माय सेकंड अटेम्प्ट आई जॉइंड माय बिजनेस आल्सो एंड आई स्टार्टेड टीचिंग आल्सो, सो दैट अगर नहीं होता है मेरे पास मेरा बैकअप प्लान रहे, प्लस हम अपना ब्रेड एंड बटर अर्न कर सकें. तो एवरीबडी कैन डू दैट. आई एम नॉट टेलिंग यू टू गो फॉर अ फुल टाइम जॉब, बिकॉज हम, देयर आर एग्जांपल्स जो लोग फुल टाइम जॉब के साथ साथ भी क्लियर किए हैं. बट मेरे साथ ये था कि हम जब 2 बार पूरा पढ़ के प्रीलिम से क्लियर नहीं कर पाया, तो मेरे पास वो, हम उतना, आई वाज नॉट वेरी श्योर फॉर दैट. तो आई वेंट फॉर अ पार्ट टाइम. ऑल्सो मेरा हॉबी भी थोड़ा टीचिंग करने का है, तो आई यूज दैट एज अ पैशन एंड एज अ वोकेशन. तो उससे मेरा जो माइंड में जो बॉदरेशन था वो भी थोड़ा खत्म होता था. हम सो दैट हेल्प मी अ लॉट. तो सबका अपना अपना प्रॉस कॉन्स होता है. सब, किसी के पास फैमिली सपोर्ट होता है, किसी के पास फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, सबका अपना अपना एरियाज रहता है. जो इसमें आता है सब अल्टीमेटली एक गटर में ही रहते हैं, सब वो खत्म हो जाता है. अब उससे उठना आपको है. बस स्टोरी यही है. और हम बिल्कुल भी डिमीन नहीं करा, हम गटर वर्ड यूज किया. आई नो, मतलब हम बिल्कुल, आई एम नॉट डिमीनिंग इट. आई एम जस्ट टेलिंग यू यू आर अंडर सेम, अल्टीमेटली अंडर सेम रूफ. तो डोंट वरी कि उसके पास ये एडवांटेज है, मेरे पास नहीं है, सब कोई फर्क नहीं पड़ता. फॉर ऑप्शनल्स, सिंस माय ऑप्शनल वाज कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, ये थोड़ा टेक्निकल है, तो ये दिस विल बी डिस्कस्ड इन सेपरेट वीडियो, सो दैट जिनका कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ही ऑप्शनल रहेगा वो अलग से देख सकते हैं, बाकी लोग फालतू का बोल नहीं होंगे. नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टेज विच इज इंटरव्यू. पहला बात, इंटरव्यू का नाम है पर्सनालिटी टेस्ट. तो इट इज नॉट अबाउट व्हाट आर यू आंसरिंग, इट इज अबाउट हाउ आर यू आंसरिंग.
इसमें क्या होता है, like for interview for this third personality test, I had taken tuition in Calcutta में एक center है ICSA बोल के, Institute for Civil Service Aspirants. That helped me a lot. Like genuinely, they developed my personality. वहाँ पे एक सर हैं, he's 85 plus. But उनके साथ जो मेरा रिलेशन है, just in 2 months he had helped me a lot. और ऐसा नहीं है कि आप कुछ फेक पोर्ट्रे कर पाते हैं. अगर इफ यू आर अंडर कॉन्फिडेंट तो आप वहाँ कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग का 2 या 3 मिनट ही हो सकते हैं, उसके बाद आप अपने आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे. तो व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, इट्स नॉट दैट यू आर रीडिंग स्टफ, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट फॉर दैट स्टफ. प्लस बहुत लोग बोलते हैं, जैसे अपने पास व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आता है, हम अपना एग्जांपल देते हैं. मेरे फैमिली में जब हम इंटरव्यू देने जाने वाला था तो हमको उन लोग फोन करके बोलता था कि व्हाट्सएप में मैसेज आता है कि इंटरव्यू ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी में कि विल इट ब्रेक इफ यू थ्रो द एग ऑन द फ्लोर. तो उसका आंसर होता है व्हाट इज लाइक हाफ एन एप्पल. तो ये सब जो क्वेश्चंस अपने व्हाट्सएप फॉरवर्ड में देखते हैं वो नहीं पूछा जाता. तो मतलब आप अगर फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो नहीं पूछा जाता. दे आस्क वेरी कंसेप्चुअल एंड वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस, एंड वेदर यू आंसर इट और नॉट डजंट मैटर एट ऑल. आप रॉन्ग आंसर दे रहे हैं नहीं फर्क पड़ता. पहला बात तो आप उसको टैकल कैसे कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, और अगर आप रॉन्ग आंसर दे देते हैं तो आप उससे कैसे निकलते हैं वो इंपॉर्टेंट है. तो उसी से आपका पर्सनैलिटी जज करते हैं. I'll just share a brief experience of my interview, and so that मतलब, और प्लस के सबका इंटरव्यू अलग अलग होता है. क्योंकि मेरा I have a CA background, थोड़ा टेक्निकल है, तो my interview was also mostly on a technical side. Around 85 to 90% was based on commerce. But उसमें भी क्या हुआ, after highlighting my ranks, the chairperson said, okay, let us go to the basics. तो हम CA है, but I was asked what is the difference between single entry and double entry. I was asked to explain the 3 basic fundamental concepts of revenue recognition, accrual basis, and going concern concept. मतलब बहुत लोगों को समझ में मतलब हो सकता नहीं है. I'm just giving an example कि these are very basic stuff which we are taught in class 11 and 12 to check how deep are you in your roots. तो जिसका ऑप्शनल है उसका रूट्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंडली, they asked me on some budget का issues, like agriculture में बजट में एग्रीकल्चर के बारे में क्या है, MSMEs के बारे में क्या है, काफी उसके बारे में थोड़ा डीप डिस्कशन हुआ था. फिस्कल डेफिसिट के बारे में डीप डिस्कशन हुआ था. Like my hobby is writing poems, so I was asked that was there any particular poet who inspired you the most in writing poems. I said no, there was no particular inspiration as such, but if you want to know who inspires me the most now, then it's Rabindranath Tagore. अब यहाँ पे मेरा एक थोड़ा एडिशनल फैक्टर हो गया था कि लाइक इंटरव्यू में एक वेटिंग रूम होता है, तो वी आर मेड टू सिट देयर. तो वहाँ पे सारे वॉल्स में पेंटिंग्स लगे हुए थे, उसमें से खाली एक वॉल था जहाँ पे पोयम लिखा हुआ था, पोयम टंगा हुआ था, एंड दैट पोयम वाज ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर वेयर द माइंड इज विदाउट फियर. तो आई यूज दिस देयर. हम फिर बोला मोर ओवर इन द वेटिंग एरिया one of my favorite poems where the mind is without fear has been hung, and that is which inspires me the most. This made the entire board into laughter. और मतलब जो पैनल मेंबर थे वो इस टॉपिक को हटा दिए और अचानक से निर्भया फंड पे शिफ्ट हो गए. तो लाइक जस्ट दिस माइन्यूट थिंग्स, कुछ अब ये हम प्रिपेयर करके नहीं जा सकता था ना, मतलब ये तो हम बिल्कुल ही प्रिपेयर करके नहीं किया था हम ये बोलेगा, बिकॉज आई डिड नॉट नो कि वहाँ पे ऐसा फोटो टंगा हुआ है. आई एम जस्ट टेलिंग यू टू बी अवेयर ऑफ थिंग्स, और कुछ नहीं. एक और इसमें एस्पेक्ट है, लाइक आई वाज आस्क्ड वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन, इनोवेशन एंड डिस्कवरी, एंड आई हैड नो आइडिया व्हाट इट इज. सो अब हम लाइक हाउ यू डील विद इट इज इंपॉर्टेंट. आई सेड आई एम नॉट रियली श्योर ऑफ व्हाट द आंसर इज, बट इफ यू अलाउ मी टू गेस आई कैन ट्राई. एंड ही टोल्ड ओके ट्राई, एंड देन आई गिव द आंसर. अब वो राइट है कि रॉन्ग है फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज हम पहले ही बोल दिया कि हमको नहीं आता. एटलीस्ट आई एम ट्राइंग. तो बस दिस इज अबाउट पर्सनैलिटी टेस्ट, दैट यू हैव टू develop your personality and be confident and be yourself. Most importantly, अगर आप उसमें fake smile या fake अपने आप personality दिखाएंगे तो वो पकड़ा जाएगा, because they are very experienced people and हो जाता है वो चीज आराम से पकड़ा जाता है. एक चीज है, whether I would have cleared this or not, UPSC had made me knowledge wise quite enriched. आज अगर हम कोई भी डिस्कशन में बैठते हैं, चाहे वो एक 60 ईयर ओल्ड के साथ हो, चाहे वो एक 10 ईयर ओल्ड के साथ हो, आई कैन डिस्कस एनीथिंग फ्रॉम दैट. तो और ये बात मोस्टली जो भी प्रिपेयर करते हैं वो ये बात बोलेंगे कि चाहे आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर लीजिए, बट इसका जो वास्टनेस है इस कोर्स का एंड जो एनरिच्ड कंटेंट है
this takes you on a different level, and that is something which is unparalleled. आपका नॉलेज कोई भी नहीं छीन सकता. हम फेल भी हो जाता तो भी मेरा नॉलेज तो हमसे कोई नहीं छीन सकता. हमको एसडीजीज क्या होता है वो पता चला. मेरे फ्रेंड्स मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, बट एटलीस्ट आई कैन कंट्रीब्यूट. अब वो हम कैसे यूज करता है वो नहीं पता, बट विद्या कभी छोड़ के तो जाती नहीं है, तो वो तो हमेशा साथ रहता है. तो जस्ट वन थिंग कि दिस कोर्स इज डेफिनेटली वेरी डिफिकल्ट. It is very taxing. It might destroy your past career, but high risk and high gains. तो वही story है. So be persevered, and if you can stick to it and work hard with a good heart, good intention is the key. If you can do that, then I think it will be achieved. So all the best.